As we have seen the sources of recruitment, we have seen internal sources in the previous video. An organization, whenever appoints an employee from within an organization through promotion, demotion, or transfer, then that type of sources are known as internal sources of recruitment. We have seen it in the previous video. You can refer the previous video. Now we will see the external sources of recruitment. So the external sources are the sources from where the organization can appoint the employee. External sources are outside of the organization from where an organization can search the candidate to apply for the job. Now there are many external sources from where an organization can motivate the employee to apply. So we are going to discuss some of the external sources here. So first is the direct recruitment, Pratyaksh Bharti. Under the direct recruitment, a notice board is placed at the gate of the factory or at the enterprise that contain the detail of the jobs available. That means the vacancy which needs to be filled by the organization along with the details. The job seeker or the employees passing by can see that board and can apply for the job if they are interested. People also gather for applying for the job or interviews when they get the information about the vacancy available at a particular factory or enterprise through their relatives or friends who have seen that notice board. तो एक एक्सटर्नल सोर्स जो है वो है प्रत्यक्ष भर्ती. कई कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां क्या करती है, एक बोर्ड जो है अपने फैक्ट्री के गेट के सामने लगा देती है जिसमें जो भी वैकेंसी खाली होती है उसकी क्या होती है, पूरी डिटेल होती है, उसके बारे में जानकारी होती है. और जो भी व्यक्ति जो कि उसके अंदर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, जो कि रुचि रखते हैं, वो उस पद के लिए क्या कर सकते हैं, आके अप्लाई कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वैकेंसी के बारे में जानकर देखकर चले जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने जो साथी है उन लोगों को बताते हैं और फिर वो लोग आके जो है इकट्ठे होते हैं और अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. So the next external source is casual callers. Many organization keeps the database of the applicants who have applied for the job before when there was no vacancy. So when there will be a vacancy or whenever there is availability of any vacant post, then organization can sort out the database and can select some of the job seekers and call them to apply for the job. तो जो एक और एक्सटर्नल सोर्स है वो प्रतीक्षा सूची है. कई व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती है जो क्या करती है, जो रेज्यूमे जो लोग डाल के जाते हैं जब कोई वैकेंसी नहीं होती है, उन सारे रेज्यूमों को, उन सारे आवेदनों को क्या करती, इकट्ठा करके रख लेती है और उनकी फ़ाइल बना के रख लेती है. उसके बाद जब भी वैकेंसी आती है तो वो अपने डाटाबेस में से फिर से उन फाइल्स को छांटती है और जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी आवश्यकता के अनुसार दिखता है उन्हें कॉल करके पूछती है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. अगर वो चाहते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं. The next external source of recruitment is advertisement. Advertisement is one of the popular and the common source of recruitment. You can see the newspaper. In that you will find a classified section in the newspaper that contains many advertisement by the companies that they require this person of these qualifications. So advertisement is a common source. An enterprise can advertise about the job available in the newspapers, in magazines, in journals. The candidate who wants the job or who are searching for the job can see this advertisement in the newspaper and magazines, and if they are interested they will apply for the job in the organization. So advertisement is one of the most popular and a good source of recruitment. One of the disadvantage of advertisement is that a lot of unsuitable, unskilled candidate apply for the job. One of the advantage of advertisement is that organization or enterprise can publish more information about the organization and the job description which is needed for a particular job. तो एक जो है बाह्य स्रोत भर्ती का है विज्ञापन.
समाचार पत्र, मैगजीन्स, जर्नल्स, इन सब में आपने विज्ञापन तो देखे ही होंगे, जिसमें कई कंपनियां जो है आवेदकों के लिए पूरा जो है जॉब डिटेल लिख के देती है कि हमें इस इतने एक्सपीरियंस का, इतने अनुभव का ये व्यक्ति इस पद के लिए आवश्यक है और उसको इतने से इतने तक का वेतन दिया जाएगा। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब लिख के देती है। और जो भी कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो कई बार समाचार पत्र पढ़ते समय इन एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापनों को देखते हैं, और अगर उन्हें वो इंटरेस्टेड होते हैं और अगर उनके लिए वो चीज़ सूटेबल उन्हें लगती है तो वो जाके क्या करते हैं, कंपनी में जाके अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और इंटरव्यूज़ देते हैं। विज्ञापन का एक जो है नुकसान ये है कि इस टाइप के विज्ञापनों से इतने सारे लोग, इतने सारे कैंडिडेट और आवेदक जो है इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, सूटेबल नहीं होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे स्किल्ड नहीं होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। और एक अच्छा एडवांटेज जो है विज्ञापन का, एक ज़्यादा अच्छा लाभ जो विज्ञापन का वो ये है कि इसके अंदर चाहे तो कंपनी अपने बारे में ज़्यादा जानकारी भी दे सकती है और जॉब की डिटेल भी थोड़ा विस्तार से समझा सकती है। Let's see the next external source of recruitment. The next external source of recruitment is employment exchange. Employment exchange are the institution that is owned and regulated by the government. They serve as a link between the employers and the employees. They keep the database of the employees who come and get registered themselves at these institutions, and many companies and organizations who needs to recruit employees of particular qualification or education can also go to this employment exchange institution and can ask the list of the candidate who are available for the job. Employment exchange also send emails and SMS about the job available, job description to the members, to the candidates who are रजिस्टर्ड विद देम। रोजगार कार्यालय ये जो है संचार द्वारा संचालित होता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट जो है खुद जाके अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कुछ फ़ीस से, मिनिमम नॉमिनल फ़ीस से रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं और अब उनकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन और उनकी जो प्रायोरिटी है जॉब में, किस प्रकार की उनको जॉब चाहिए, सब लिखवाते हैं। और कंपनियां भी इनके पास आती है, रोजगार कार्यालय के पास, और जो है सूची लेके जाती है कि कौन कौन से जो है प्रत्याशी जो है जॉब के लिए अवेलेबल है, और उनमें से फिर वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। ये एजेंसियां जो होती है कई SMS एंड ईमेल्स भी जो है उसके मेंबर्स को भेजती है। मेंबर्स मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने क्या करा है, रजिस्ट्रेशन करवाया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, कि SMS के अंदर वो भेजती है कि कौन कौन सी जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और जो है उसकी डिटेल्स जो है वो पूरी SMS के साथ कैंडिडेट्स को भेजी जाती है इनके द्वारा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स they are the employees of the organization also, and they can provide a large number of the labor, unskilled laborers at a very short notice to the organization. One of the disadvantage of the labor contractors is that if the labor contractor leave the organization, then all the employees or the labor appointed by him in the organization or appointed with the help of the labor contractor also leaves the organization. जॉबर्स और ठेकेदार जिन्हें हम बोलते हैं, ये एक बाह्य स्रोत है भर्ती का। इसमें क्या होता है, जो ठेकेदार होते हैं या ये जॉबर्स होते हैं, ये खुद भी क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं किसी संगठन के, और इनके द्वारा जो है कई कर्मचारी या कई मजदूरों को क्या करा जाता है, जॉब पे लगाया जाता है। अगर समय कम है तो शॉर्ट नोटिस पर भी ये लोग क्या करते हैं, मजदूरों से संपर्क करके उन्हें जॉब पे लगाते हैं। और इसका एक जो है एक नुकसान ये है कि अगर ये ठेकेदार या ये जॉबर खुद जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो जो श्रमिक जो इनके द्वारा लगाए गए हैं वो भी इनका अनुसरण करके कई बार संगठन को छोड़ के चले जाते हैं। Next source of recruitment is campus recruitment. It is also an external source of recruitment. Many organizations and enterprises have a link with the colleges and institutions of management or professions, and they
Ask for the list of the candidates who are suitable, qualified, and confident from these colleges and institution, and this college and institution provide the list of the freshers student who have just passed out or just passed out the colleges or who are in the final years. Then the organization or enterprise takes the interview in the campus of the colleges and institution and select them directly to the organization. तो जो दूसरा सोर्स वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, इसे जो है विश्वविद्यालय भर्ती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या होता है कि कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनका जो है एक लिंक होती है, एक टाई होता है विश्वविद्यालय और ये प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ, और ये कंपनियाँ जो है लिस्ट मांगती है ऐसे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स की जो कि क्या हो, क्वालिफाइड हो, इंटेलिजेंट हो, और ऐसे कॉलेजेस जो होते हैं कॉलेजेस उनको जो है लिस्ट दे देते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं, जो या तो कॉलेज को जस्ट पास करके निकले होते हैं, उत्तीर्ण करके निकले होते हैं, या तो फिर वो फाइनल ईयर्स में होते हैं। ऐसे फ्रेशर्स की लिस्ट दे दी जाती है कॉलेज द्वारा और कंपनियां उनका इंटरव्यू लेके उन्हें सीधे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज में जो है भर्ती कर लेती है, उनका चयन कर लेती है। ये इंटरव्यू कैंपस में ही होता है कॉलेजेस के और महाविद्यालयों के, इसलिए इससे जो है कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से जाना जाता है। इन सभी के सिवा हमारे पास और भी वो सोर्सेज है, बाहरी भर्ती के स्रोत और भी है जो कि आपकी बुक में लिखे हैं। आप रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ पड़ जाएगा, तो आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो दे आर अदर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अवेलेबल इन योर बुक एंड यू हैव टू रीड देम एंड यू विल अंडरस्टैंड देम बिकॉज दे आर ईजी। अब हमारा जो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है।